بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى صدق اللہ العظیم۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات۔ ایک رحمت دو جہاں تیری ذات ہے، ایک رحمت دو جہاں تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ سامعین محترم، رب کائنات نے تمام انبیاء کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا، مگر کیفیت میں اور دیدار مصطفیٰ میں اور دیدار خدا میں فرق ہے۔ کیفیت معراج میں فرق ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی رب کائنات نے عظیم شان سے نوازا، بہت بڑا منصب عطا کیا کہ ابو البشر ہونے کا اعزاز بخشا، مسجود ملائکہ بنایا۔ آدم علیہ السلام کا یہ بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے کہ وہ مسجود ملائکہ ہے۔ اس پر بھی مفسرین نے، محدثین نے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ جو ملائکہ کا سجدہ تھا وہ بھی حقیقت میں نور مصطفیٰ کو ہی سجدہ تھا۔ آدم علیہ السلام مسجود الہ تھے، مسجود لہو ذات مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، یعنی یوں سمجھیں کہ آدم علیہ السلام قبلہ کی مانند تھے اور سجدہ میرے مصطفیٰ کے نور کو ہو رہا تھا۔ آپ اس کی مثال یوں لے لیں، ہمارا رخ، ہماری سمت قبلہ کی طرف ہوتی ہے، ہمارا چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف ہوتا ہے، مگر سجدہ بیت اللہ کو نہیں، بلکہ سجدہ ہمارا اللہ کی ذات کو ہے۔ تو مسجود الہ آدم علیہ السلام تھے، اور مسجود لہو جسے سجدہ کیا جا رہا تھا وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے جنت سے زمین کی طرف بھیجا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اے آدم زمین پہ آ، ہم تجھے خلافت دینا چاہتے ہیں، خلافت کا تاج پہنانا چاہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام جنت سے زمین کی طرف آئے، خلافت کا تاج پہنایا گیا۔ جب باری آئی عبداللہ کے چاند کی، آمینہ کے راج دلارے کی، جب باری آئی تیرے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب باری آئی بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، شفیع للمذنبین، تاج دار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کی، تو فرمایا حبیب ذرا تو زمین سے عرش بری کی طرف آ، ہم تجھے امامت کا تاج پہنانا چاہتے ہیں۔ بیت المقدس کے اندر 1,24,000 انبیاء میرے نبی کے پیچھے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر تھے۔ آدم علیہ السلام جو خلیفہ ہیں وہ بھی پیچھے تھے۔ ارے لوگوں، خلیفہ پیچھے ہوتا ہے، امام آگے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے سب انبیاء سے
अफजल व आला मर्तबा अता किया। और कलीम और हबीब में बड़ा फर्क है। जिस तरह खलील और हबीब में फर्क है और आदम और हबीब में फर्क है, इसी तरह कलीम और हबीब में भी फर्क है। कलीम वो है जो अपनी मर्जी से तूर पर आए, चिल्ला काटे और फिर बारगाहे समदियत व वहदियत में अर्ज करे, मेरे अल्लाह मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं। फलम्मा जा मूसा लिमीकातिना व कल्लमहु रब्बुहु, जब अल्लाह ने कलाम किया तो कलाम इलाही में वो चाशनी थी, वो हलावत थी, वो मिठास थी। वो जब हलावत देखी तो फिर अर्ज कर दी, रब्बी आरिनी अनजुर इलैक, मेरे अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, तेरा दीदार करना चाहता हूं। ये इंसानी फितरत है। जब बंदा किसी का कलाम सुनता है तो फिर दीदार की आरज़ू पैदा होती है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बार बार इसरार किया। रब्बे कायनात ने फरमाया, मेरे प्यारे कलीम में दिखाने पर कादिर हूं, तुझ में देखने की वो ताब नहीं है। मेरे प्यारे कलीम, अगर तू चाहता है मेरा दीदार तो फिर फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जाबाली जअलहु मूसा, फरमाया मैं इस पहाड़ पे तजल्ली डालता हूं। फलम्मा रआ, तू फिर इसे देख। जब ये पहाड़ देखेगा और पहाड़ अपनी जगह पर बरकरार रहा, मेरे कलीम तो फिर मुझे भी देख लेगा, मेरा दीदार भी कर लेगा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहाड़ की तरफ देखा, रब्बे कायनात ने अपने अनवार की तजल्ली डाली तो पहाड़ रेसा रेसा हो गया और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। किसी ने क्या खूब लिखा, फर्क तालबो मतलूब में देखे कोई, फर्क तालबो मतलूब में देखे कोई, किस्सा तूरो में राज समझे कोई, कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि वो जो देखने के अरमान थे, देखने का तसव्वुर था, देखने की आरज़ू थी, तमन्ना थी, वो खर्रा मूसा साइका की सदा बनकर रह गई। और जब बारी आई मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो हजरत जिब्रील अमीन मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की, इन्नल्लाह ताला यक़रउका सलाम व हुवा यदऊका व अना हामिलुका इलल्लाहि ताला। या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम भेज रहा है, अल्लाह बुला रहा है और मैं लेने के लिए हाजिर खिदमत हूं। अल्लाह अकबर। हुए हैं हजरत जिब्रील हाजिर, हुए हैं हजरत जिब्रील हाजिर। क़याम हक सुनाया जा रहा है, जमीन से ता अर्शे मुअल्ला नबी का नूर छाया जा रहा है। हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के लिए सवारी पेश की गई। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने तैयारी की, फिर सवारी पेश की गई और आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सुम्मा ऊतीतु बिदाब्बतिन दूनल बगली, सुम्मा ऊतीतु बिदाब्बतिन दूनल बगली व फौकल खिमारी अब यादो युकाल लहुल बुर्राक। फिर मुझे एक सवारी पेश की गई जिसका कद खच्चर के कद से छोटा था और गधे के कद से उसका कद बड़ा था, रंग उसका सफेद था। फरमाया उसी को बुर्राक कहते हैं। बुर्राक बरक से है, बरक का माना बिजली है, वो बिजली की तरह तेज रफ्तार सवारी मेरे आका को पेश की गई। हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सफरे मेराज तय करते करते, यहां भी बड़ी खास बात है। लोग कहते हैं हुजूर बैतुल मुकद्दस में गए, हुजूर के मेराज। मैंने कहा नहीं, वो मेराज मुस्तफा नहीं, जहां महबूब जाता है उस जगह की मेराज होती है। बैतुल मुकद्दस की मेराज थी। कहते पहले आसमान पर गए तो पहले आसमान की मेराज थी। मैंने कहा हुजूर की मेराज नहीं, बल्कि वो पहले आसमान की मेराज थी, फिर दूसरे आसमान, फिर तीसरे आसमान, फिर चौथे आसमान, फिर पांचवें, फिर छठे आसमान और फिर सिदरा, फिर सातवें आसमान से आगे सिदरा आल गरज
मुख्तलिफ मकामात से सैर करते हुए गुजरते हुए हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काब कौसैन के मुकाम पर पहुंचे। काब कौसैन, काब मिकदार को कहते हैं, कौस कमान को कहते हैं। इसकी हकीकत तो खुदा जानता है, यह मुस्तफ़ा जानते हैं, मगर उरफा ने जो हिकमतें लिखी उनमें से एक आध हिकमत ये है कि अरब के अंदर दस्तूर था, जब एक कबीला दूसरे कबीले के साथ सुलह करता तो दोनों कबीले अपनी अपनी कमाने मिलाकर अपने अपने मकानों की छतों पे अवेसा कर देते, लटका देते, जो इस बात का इशारा होता कि एक की सुलह दूसरे की सुलह है और एक की लड़ाई दूसरे की लड़ाई है। अरे लोगों, काबा कौसैन का जुमला इरशाद फरमा कर रब्बे कायनात ने ऐलान कर दिया, दुनिया वालों सुन लो, मैं और मेरे मुस्तफा में ताल्लुक वो ताल्लुक है कि मेरे मुस्तफा का दर ही तो खुदा का दर है, मुस्तफा की बारगाह का महबूब ही तो अल्लाह का महबूब है, मुस्तफा की बारगाह का मरदूद अल्लाह का मरदूद है। इसलिए कि बैत मुस्तफा ही तो बैत खुदा है, यद मुस्तफा ही तो यद खुदा है, रजाए मुस्तफा ही तो रजाए खुदा है, और फेले मुस्तफा ही तो फेले खुदा है। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर हकीकत में दरे खुदा है। आला हजरत भी बोल उठे, बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आकी हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। याद रखा ना, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा कौसैन से आगे ओदना की बुलंदी पे पहुंचे। मैं क्या अर्ज करूं, मेरा रब अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान करता रहा, सदा आती रही, उदनु या अहमद उदनु या खैरुल बरिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवाज करते रहे, वो मुकाम आया